Today I am going to start with flow of control in any of the programming language. Here I have written there are three types of flow of control. Number one is sequence, number two is selection, and number three is iteration. Like when we put a glass of water on the floor and it flows in the sequential flow. So first type of construct is sequential flow of control, and in that we are not supposed to give any kind of instruction in the programming language in the program, and the statements written like statement 1, statement 2, they flows from top to bottom automatically without any interruption. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो स्टेटमेंट क्रमबद्ध टॉप टू बॉटम एक एक स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट होता जाएगा, और दिस इज़ नोन एज सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल, and this is a very normal flow of control, sequential flow of control. Then I'm coming to the second flow of control, that is selection flow of control. In this this is also called conditional flow of control. Conditional flow of control. In conditional flow of control there are two types of conditional statements, like the first one is if and the second one is switch. So in this flow of control we put certain condition, like यहाँ पे हम कुछ कंडीशन रखेंगे और वो कंडीशन रखने के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन यहाँ पर किसी भी कंडीशन को रखने पर सॉरी जस्ट अ मिनट, किसी भी कंडीशन को अगर हम रखेंगे एक इफ़ स्टेटमेंट के साथ तो उस कंडीशन के दो ही आंसर आएंगे, या तो ट्रू या फॉल्स. इट विल गिव ओनली टू आंसर्स, आइदर ट्रू और फॉल्स. सो इन केस ऑफ ट्रू one set of statement will be executed, one set of statement will be executed, and statements will be executed, and in case of false another set of statements will be executed. It depends, like another set of statement will be executed. So it all depends upon the condition. Like so in selection we are putting condition, and they are known the selection state. This is also known as conditional flow of control, and in this there are two types of flow of control, and there are two varieties for putting flow conditions. Like number one is if and another one is switch. In if we put like the condition will be evaluated, will be checked by the program, and if the condition evaluates to true, then it follows some set of action. Otherwise if it evaluates to false, then another set of statement executes. So another one is the switch statement. In switch statement only two types of constants are allowed. Either it must be the integer constant or the character constant. Means the condition can be kept with only two values, either integer or character. That we will discuss further. ये हम लोग इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब कितने तरह के फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं. नंबर वन सीक्वेंस. इन सीक्वेंस जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेटमेंट्स टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है बिना किसी इंटरप्शन के. इन सिलेक्शन
we put certain conditions in our program and conditions are kept. कंडीशंस को रखने के दो तरीके होते हैं, एक तो इफ़ होता है और दूसरा स्विच होता है. इफ़ में हम कंडीशन लगाते हैं और कोई भी कंडीशन का सिर्फ दो ही आंसर आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स. अगर ट्रू आया तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आया तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. फिर दूसरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्विच. तो ये इसके साथ एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ हम इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट को ही एज अ कंडीशन पुटअप कर सकते हैं और वो चेक होगा और ये मल्टीपल सेट ऑफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए स्विच स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करेंगे. फिर इसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे. तीसरा इटरेशन है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लूप्स. इन शॉर्ट वी से लूप्स आर लूपिंग स्टेटमेंट. इसको हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. दैट इज़ नोन एज लूप्स and or looping statement, and there are two varieties of loops available in a programming language. One is known as entry controlled loop, entry controlled loop, entry controlled loop, and another one is known as, another category is the exit controlled loop. In exit controlled loop, entry control loop and exit control loop. Now in entry control loop, what happens, like condition, whatever condition is there, condition will be kept at the entry point of the loop, like from where the statement starts executes. When at the entry point we put the condition in the entry control loop. There are two types of loops generally available in the programming languages. In entry control loop they are known as for and while loop, and then there are another loop that is available and then comes under the category of exit control loop. This is known as do while loop. In this loop, the condition is supposed to be kept at the exit point of the loop. Means this loop will execute at least once. So what is loop basically? In loop, like suppose if you have been told to print a certain number 10 times, 5 times or 10 times, then you cannot put the print statement for 5 times or 10 times or 100 times suppose. Then it would be very hectic for you to put the print statement 10 times, 50 times or 100 times. So what we do, the easier way is to put the looping statement in the program. एंड लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है कि आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट्स को चलाने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है. दे आर नोन एज, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं. द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, मतलब कहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. फिर हमको दूसरा चीज़ चाहिए, दैट इज़ टेस्ट एक्सप्रेशन. And this test expression is basically the condition. Test expression, this is basically the condition. हम condition डालते हैं और फिर update expression means हमको कितने से लूप को आगे बढ़ाते जाना है. This is update expression. तो ये होता है initialization expression पहला, कि कहाँ से हमको लूप स्टार्ट करना है, that means the beginning point of the loop. Then test expression, कहाँ तक लूप को हमको चलाना है, और अपडेट एक्सप्रेशन कितने से हमको लूप को आगे बढ़ाना है. मान लीजिए आपको अगर 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है तो आपको लूप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स 1 विल बी द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, 1 will be the
इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द 1 एंड एंडिंग पॉइंट विल बी द टेस्ट एक्सप्रेशन में आपका जाएगा, मतलब एंडिंग पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, दैट वुड बी 100। एंड अपडेट हमको कितने से करना है, हमको 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है, तो हमको अपडेट कितने से करना है, +1। हर बार हम एक एक से बढ़ाते जाएंगे। तो दिस इज़ द अपडेट एक्सप्रेशन। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ, देर आर 3 and the fourth element of course is needed. This is the fourth element that is needed is the loop body. That means the statements be under the loop that you are supposed to be executed n number of times. जिसको ये लूप, जो लूप बॉडी है, ये बताती है कि हमको हाँ ये इसमें वो स्टेटमेंट आते हैं जो कि हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, और जब तक हम चाहेंगे तब तक, लाइक मॉस्किटो कॉइल, once you ignite the mosquito coil, it starts working, and at the end of the time when it finishes, mosquito coil gets burned. So suppose I want to print I've given a very simple example, like मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको दिया कि अगर हमको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करना है तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हमारा 1 से स्टार्ट होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन 100 से स्टार्ट होगा, अपडेट एक्सप्रेशन हर बार 1 से बढ़ेगा। तो ये जो एलिमेंट ऑफ लूप है, दिस कम्स इन एवरी लूप। फॉर एंड वाइल में भी आता है और डू वाइल में भी आता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आपसे बाद में बात करेंगे। तो आज हमने देखा फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ जो कुछ भी मैंने बताया। नंबर 1 फ्रेंड्स, सीक्वेंस, इन सीक्वेंस फ्लो ऑफ कंट्रोल हम कोई इंटरप्शन नहीं रखते हैं। नॉर्मली स्टेटमेंट्स दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, and control starts from the first statement and it goes till the end of the statement without any interruption. Number 2, selection flow of control. In selection flow of control there are 2 types of conditional statement. This is also known as conditional statement, as I have already said. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में 2 टाइप होता है। एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, एक होता है इफ़ और दूसरा होता है स्विच। इफ़ में हम कंडीशंस रखते हैं, कंडीशंस या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती हैं। कंडीशंस के 2 ही आंसर मिलेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के सेट में एक ट्रू के केस में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स के केस में दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद तीसरा हमने आपसे कहा कि इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन मीन्स in a cycle we are supposed to execute n number of statement or a single statement n number of time. तो n number of statement और a single statement n number of time को execute करने के लिए हमको loops की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपसे बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 2 तरीके के लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो जो पहला लूप स्ट्रक्चर होता है वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप। मीन्स कि जहाँ से भी लूप स्टार्ट होता है, एंट्री पॉइंट पे ही हम कंडीशन लगा देते हैं कि कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कंडीशनल स्टेटमेंट में कि कंडीशंस के सिर्फ 2 ही आंसर आ सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ही ये दोनों जो लूप स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एंड वाइल, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, एंट्री ही नहीं करेगा। दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लूप दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जो मैंने आपको बताया, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इज में सिर्फ एक ही टाइप का लूप हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जो हम
यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ डू वाइल लूप। इन डू वाइल लूप जो कंडीशन होता है वो कंडीशन कहाँ पे आता है, एग्ज़िट पॉइंट पे आता है। इसमें ये जब प्रोग्रामर ये चाहता है कि उसका लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में वो डू वाइल लूप का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद हमने आपसे बात किया कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द लूप। अच्छा, एक चीज़ और, एलिमेंट्स ऑफ द लूप को हम पार्ट्स ऑफ लूप भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, कहीं कहीं हम इसको पार्ट्स ऑफ लूप भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ लूप, अब क्या क्या हमको चीज़ें चाहिए एक लूप को चलाने के लिए, वो मैंने आपसे बात किया। तो नंबर 1 इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जो कि कहाँ से लूप को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ से हम लूप को स्टार्ट करना मांग रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि कहाँ तक हम लूप को चलाना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज टेस्ट एक्सप्रेशन। फिर हम कितने से लूप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अपडेट एक्सप्रेशन। और फिर जो है हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जिनको हम n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अपडेट एक्सप्रेशन, सॉरी लूप बॉडी, दैट इज़ नोन एज लूप बॉडी, सॉरी। तो अब हमने आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के बताया था कि मान लीजिए हमको 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन कहाँ से होगा, 1 से होगा। और कहाँ तक के नंबर्स को हमको प्रिंट करना है, 100 तक। और तो हम टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा कहाँ तक का जाएगा, हम कहाँ तक कंडीशन डालेंगे, 100 तक। और अपडेट एक्सप्रेशन हमारा कितने से आगे बढ़ेगा, +1, मतलब एक एक करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे 1 से लेकर 100 तक नंबर हमने प्रिंट कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट के यूज़ से। दिस इज़, मतलब ये जो है लूपिंग स्टेटमेंट का कमाल होता है कि हमारे वर्क को उसने बचाया। अब एक एग्जांपल और हम आपको दे इन दोनों का। सपोज अगर हमसे कहा गया कि 2 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करो, तो हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ तक जाएगा, 20 तक। और हमको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, मतलब कि 2, 4, 6 इस तरीके से इवन नंबर्स हमको 20 तक के प्रिंट करने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये नंबरों की संख्या 2-2 से बढ़ रही है। अब हमको अपडेट एक्सप्रेशन कितना करना पड़ेगा, +2। तो इस केस में ये चीज़ ऐसे होगी, हम डालेंगे तो हमारे प्रोग्राम में 2 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द अपडेट लूप अपडेट एक्सप्रेशन। तो अब लूप बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट हम डालेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। तो आज हमने आपसे बात किया फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। अब अगली बार हम आपसे सिलेक्शन स्टेटमेंट, दैट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने आपको बताया कि इफ़ और स्विच होता है, तो इफ़ के भी पार्ट्स मतलब टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के इफ़ हैं वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आपसे, और फिर स्विच के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।